Thank God for the word we heard. परमेश्वर का धन्यवाद जो अभी हमने वचन सुना। Yeah, I was just listening to the word and just thinking about the thief on the cross. मैं जैसे वचन को सुन रहा था, मैं उस चोर के बारे में सोच रहा था जो क्रूस पे था। You know, when you think about it, it's at the last moment. जब आप उसके बारे में सोचते हो तो आपको समझ आता है कि वो उस आखिरी समय पे था उसके। All his life, he just spent stealing and probably killing उसने अपना पूरा जीवन चोरी में या फिर किसी को मारने में, हत्या करने में ही बिताया, and committing petty crimes. या अधर्म के काम किए। There was nothing, literally nothing good he had. उसके जीवन में कुछ भी अच्छा ही नहीं था। And probably it's just seconds of just two sentences he said. और उस आखिरी समय में केवल उसने 2 शब्द, 2 वाक्य कहे होंगे। That was it. He was honest. और वो 2 वाक्य में वो पूरा ईमानदार था। What did he do? He didn't come to church every Sunday. उसने क्या किया? वो हर रविवार को चर्च में नहीं आया। He didn't come and do the big setup or preach or sing songs or do so much of ministry for God. वो चर्च में आके उसने कुछ बड़ा सेटअप नहीं किया, प्रचार नहीं किया या गाने नहीं गाए परमेश्वर के He लिए। was just simply honest that he was a sinner. वो केवल ईमानदार था और उसने ये माना कि वो एक पापी है। And that saved him. और उस चीज़ ने उसे बचा लिया। Yes, that's where I would like to press on to. और मैं भी इसी बात पे जोर देना चाहूँगा। Being more honest, ज़्यादा और ईमानदार बनना। saying that, there's nothing good that I have, ये कहना कि मेरे अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं है, but it is all his righteousness. ये सब उसी का दिया, उसका दिया हुआ अच्छाई है। In his righteousness we stand. और उसके धार्मिकता में हम खड़े होते हैं। In Ephesians, that first chapter, in so many verses, probably in the first 10 verses, it says, in him, in him. इफिसियों की पुस्तक में जब हम देखते हैं पहले अध्याय में, शुरुआत के 10 वचनों में ऐसा लिखा है कि उसमें परमेश्वर में और परमेश्वर में। Yeah, so that's what really blessed me. और इस चीज़ ने मुझे काफ़ी आशीषित किया। In John chapter 8, हम यूहन्ना के 8वां अध्याय में देखेंगे। in John chapter 8, verse 31 onwards, यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 31 वचन। so Jesus was saying to those Jews who had believed him, so there were Jews who had believed him. और यहाँ पे यहूदियों के बारे में ये वचन है जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। Say, if you continue in my word, then you are truly disciples of mine. यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। So they were Jews who believed, and Jesus is telling them, you have to continue in my word. तो यहाँ पे यहूदियों को हम देखते हैं जो जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया, और यीशु मसीह उनसे कहता है कि तुम्हें मेरे वचन में बने रहना है। Not just believe, but continue. बस विश्वास नहीं, लेकिन बने रहना है। There's a whole life ahead after repentance and faith. एक पूरा जीवन है, एक उद्धार और विश्वास, Repentance and faith. पश्चाताप और विश्वास के बाद। And he said, and verse 32, and you will know the truth, and the truth will make you free. 32 वचन, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Verse 33, they answered him, we are Abraham's descendants and have been enslaved to anyone. How is it that you say you will become free? 33 वचन, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? So Jesus said, you need to become free, but has a human point of view, become free from what? यीशु मसीह कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के हम नज़र से देखेंगे तो किस चीज़ से? And they were Abraham's descendants and they were Jews, so basically they knew the Bible, they knew the letters very well. वो अब्राहम के वंश से थे और वो यहूदी थे, तो उन्हें वचन काफ़ी अच्छे से पता था सब। Still they didn't know what to be freed from. लेकिन फिर भी उन्हें ये नहीं पता था कि किस चीज़ से उन्हें स्वतंत्र होना है। We can be in this situation too, we can be religiously very well. हम भी इस
सिचुएशन में आ सकते हैं कि जहाँ पे हम धार्मिकता में बहुत अच्छे हैं. You know, I can do all the things, pertaining to Christianity मैं ऐसा बहुत सारी चीज़ religiously. मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ कर सकता हूँ धार्मिकता में जो एक मसीह जीवन को दिखा सकता है, But I still may not be freed. लेकिन फिर भी मैं स्वतंत्र नहीं रहूँगा. And in verse 34 it says, Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is a slave of sin." और 34 वचन ऐसा कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है. So we are all enslaved to sin. हम सभी पाप के दास हैं. We have all been short of God's glory. हम सब परमेश्वर की अनुग्रह से दूर वंचित हैं. We all have a sinful nature. हम सब के अंदर पाप का स्वभाव है. And Jesus has come to set us free. और यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करने के लिए आया है. And he says that the slave does not remain in the house forever, the son does remain forever. And verse 36, if the son makes you free, you will be free indeed. 35 और 36 वचन ऐसा कहता है, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है. इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे. Yes, so Jesus has come to set us free from all our sin. हाँ, यीशु मसीह हमें हमारे सब पापों से स्वतंत्र करने के लिए आया है. And not just living a comfortable life or not this, but sin of dirty thoughts. एक आरामदायक जीवन देने के लिए नहीं या जीने के लिए, लेकिन पाप से छुटकारा पाने के लिए, हम एक गंदा सोच से छुटकारा पाने के लिए, Freedom from anxiety. चिंता से स्वतंत्र पाने के लिए, Freedom from getting angry and losing your temper. गुस्से से स्वतंत्र दिलाने के लिए आया है. Yes, Jesus has come to set us free and give us a glorious freedom. यीशु मसीह आया हमें स्वतंत्र देने के लिए और एक महिमा वाला जीवन देने के लिए. Yeah, so many times you may think that I'm not an overcomer, I'm not freed from all my sin. कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि मैं एक जय का जीवन मेरे पास नहीं है, मैं पाप से ऊपर नहीं आ पा रहा हूँ. But do we genuinely desire, do we hunger and thirst to be freed from sin? लेकिन क्या हम सच में छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या हमारे मन में वो भूख और प्यास है? In Matthew chapter 5 verse 6, I believe it says, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness." मत्ती में ऐसा लिखा है कि धन्य है वो लोग जो those who hunger and thirst for righteousness. धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं. And in Hebrews chapter 1 verse 9 also it says, Jesus loved righteousness and hated sin, hated lawlessness. इब्रानियों में भी ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह धार्मिकता को पसंद करता था और उसने नफरत किया है. Do I have that genuine desire in my heart that I want to hate sin completely? क्या मेरे मन में भी ये विचार है, एक सच्चा विचार कि मैं पाप से नफरत करना चाहता हूँ? Or do I have a casual attitude towards sin? या मेरे अंदर एक ऐसा स्वभाव है जो पाप को हल्के में लेता है? When the previous chapter in John chapter 8 where the woman was caught in adultery. यूहन्ना की पुस्तक 8वां अध्याय में हम देखते हैं कि एक स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी. And they were all about to stone her. और वो सभी उसे पत्थर से मारने वाले थे. And the last line what Jesus said. और आखिरी वचन वहाँ पे जो यीशु मसीह ने कहा, He said, "I do not condemn you. Either go from now on and sin no more." 8:11. 8 का 11 वचन हम देखते हैं. यूहन्ना 8 उसका 11 वचन. उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं. यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना. We always focus on the first part. We like the first part. I do not condemn you. हमें पहला जो पार्ट है वो हमें बहुत पसंद है, जहाँ पे लिखा है कि मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता. As I was reading this, I was thinking the second part, and do not sin no more. जैसे मैं ये पढ़ रहा था तो मैं उसका आखिरी भाग पे मैं ध्यान दे रहा था कि जहाँ लिखा है और फिर पाप न करना. Yes, Jesus is there to forgive us. His mercies are new every morning. यीशु मसीह हमें क्षमा करने के लिए है, हर दिन उसका अनुग्रह एक नया है, लेकिन हमें पाप नहीं करना है.
And he says, but what about the second part, and do not sin no more? लेकिन उसका आखिरी भाग क्या कहता है कि हमें फिर पाप ना करना। Are we persisting and striving, to ask God to help us in that? क्या हम परमेश्वर से हमेशा विनती करते हैं और उसके पीछे चलते हैं कि हमें पाप नहीं करना है? Do I see sin as exceedingly sinful? क्या मैं पाप को एक गंभीरता से देखता हूँ? I was listening to one of Uncle Zach's message. मैं अंकल जैक का एक सरमन सुन रहा था। He was telling, think of sin as the worst thing you can possibly think. पाप को ऐसे देखो कि तुम एक किसी गंदी से गंदी चीज के बारे में सोच सकते हो, ऐसे उसे देखो। And he did mention, think of an unflushed toilet. ऐसे सोचो कि एक बाथरूम है जिसमें फ्लश नहीं किया, टॉयलेट फ्लश नहीं किया है। Yeah, that is sin, and that is sometimes what we consume. हमें पाप को इस तरह देखना है और हम कई बार इस पाप को हम अपने अंदर ले लेते हैं। Yes, I really want to, hate sin completely. मैं पाप को पूरी तरह से नफरत करना चाहता हूँ। And in 1 Peter 1:17, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 1:17. पहला पत्रस उसका पहला अध्याय का 17वां वचन। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पश्चाताप हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। Yeah, in 17, the latter part, it says, conduct yourselves in fear during the time of your stay on earth. आखिरी भाग में ऐसा लिखा है कि जो परदेशी होने का समय भय से बिताओ। It's like, somebody, your parents telling you when you go to this place, behave well or do, good. ये कुछ इस प्रकार लिखा है जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को कहते हैं कि जब तुम यहाँ जाओगे या इस जगह पे जाओगे तो तुम अच्छे से वहाँ अपना बिहेव करना। Similarly, I'm on this earth for a temporary stay. इसी प्रकार मैं भी इस पृथ्वी पे कुछ ही समय के लिए हूँ। I'm not going to be here forever. मैं यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं हूँ। I am going to be here for a very short time. मैं इस पृथ्वी पे बहुत ही थोड़े समय के लिए हूँ। And I have to conduct myself in fear during the time of your stay on earth. और मैं जितना भी समय इस पृथ्वी पे हूँ, मुझे भय के साथ जीवन बिताना है। Knowing that you are not redeemed with perishable things like silver or gold from your futile way of life, inherit from your forefathers, but with precious blood as of lamb, unblemished and spotless, the blood of Christ. Just knowing that, I've been purchased with a hefty price. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। I have to have this hope, while my stay on earth and forever in eternity. ये इस वचन को हमें याद रखना है कि मैं जब तक इस पृथ्वी पर हूँ। And not that hope that I will be with him. That hope that I will be with him. और उस आशा जो मैं परमेश्वर के साथ रहूँगा। The memory verse says 1 Thessalonians 5:11. जैसे हमने मेमोरी वर्स में देखा, पहला थिस्सलुनियों उसका 5:11। I really like the previous verse. उसका पिछला वचन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। It says in verse 10, who died for us so that whether we are awake or asleep, we will live together with him. 10वां वचन ऐसे कहता है, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जगत जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। Christ our hope in life and death. परमेश्वर यीशु मसीह हमारी आशा है, जागते और चाहे हम जिए या मरने के बाद भी। And then verse 11, therefore encourage one another and build up one another. और फिर 11वां वचन कहता है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। Amen. आमीन। One verse was speaking to me for some days. और कुछ दिनों से एक वचन मुझसे बात कर रहा था। I like to read that from 1 John 2:16. मैं वो पढ़ना चाहूँगी। पहला यूहन्ना 2:16. उसका दूसरा अध्याय 6वां वचन। 16. सॉरी 16वां वचन। For the world offers only a craving for physical pleasure,
a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world. क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है. That spoke to me is these are not from the Father. और इस वचन से मुझे वचन ने बात किया कि ये सब पिता की ओर से नहीं है. So, three things are written here which are not from the Father. 3 बातें यहाँ पे बताई गई हैं जो पिता की ओर से नहीं है. That is craving for physical pleasure जो कि शरीर की अभिलाषा है, and craving for everything we see, आंखों की अभिलाषा and pride in our achievements and possessions. और जीविका का घमंड. So, all these are not from the Father. ये सब पिता की तरफ से नहीं है. So, then I prayed, Lord, whatever is not from the Father, I also don't want. फिर मैंने प्रार्थना की, पिता जो भी आपकी ओर से नहीं है वो मुझे नहीं चाहिए. Lord, you remove these cravings and everything from this world of us. Lord, you remove this. परमेश्वर आप मेरे जीवन से ये सब अभिलाषाओं को निकालो. Whatever is not from you, I don't want also. आपकी ओर से जो कुछ नहीं है मुझे वो नहीं चाहिए. So actually this world is the other man which is attracting me so much. ये संसार एक दूसरे पुरुष के जैसे है जो मुझे अपने और आकर्षित कर रहा है. To distract me from my devotion to Jesus. वो मेरे Distracting me from my devotion to Jesus. वो मुझे मेरा जो ध्यान यीशु मसीह पे है उससे वो मेरा ध्यान भटका रहा है. So I have to be very careful when I am dealing with this world. तो मुझे बहुत सावधान पूर्वक रहना है जब मैं इस संसार की चीज़ों में भाग लेती हूँ. I have to be fear every day when I am dealing with this world. मुझे हर समय भय के साथ जीवन जीना है. Because this world can deceive me and take my devotion from my Jesus. और ये संसार मुझे यीशु मसीह से दूर कर सकती है. So what all is not from the Father, I also don't want. जो भी परमेश्वर की ओर से नहीं है मुझे वो नहीं चाहिए. This was my prayer for some days. Lord, you remove all what is not from you. Lord, remove from my heart. और कुछ दिनों से यही मेरी प्रार्थना था कि यीशु मसीह परमेश्वर मेरे जीवन से मेरे हृदय से ये सब चीज़ें निकालो जो आपकी ओर से नहीं है. We read John 14. Jesus says in 14:30, the ruler of the world is coming and he has nothing in me. हम यूहन्ना 14 अध्याय में जाते हैं, उसका 30वां वचन 30 14 अध्याय का 30 वचन. मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूँगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं. I also want to be like this, want to live like this Jesus, that the world has nothing in me. मैं भी इस प्रकार जीवन जीना चाहती हूँ यीशु के जैसे, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, संसार का मुझ पर कोई अधिकार नहीं. परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास करके जो याद रखने की जो वचन जो हम देखा है पहला थिस्सलुनीके 5 में, जहाँ पे ऐसा लिखा है इंग्लिश में, wherefore comfort yourself together and edify one another even as also I do. इस वचन को जब मैं ध्यान कर रहा था, मेरे अंदर यही आया कि मैं अगर एक दूसरे को अगर मैं उत्साह सकूं, उत्तेजना दे सकता हूं, वो कब मैं दे सकता हूं? When can I encourage one another? यहाँ पे उसका जो एक नज़दीक एक वर्ड दिया गया है फॉर कंफर्ट इज बिल्डअप, मतलब एक दूसरे को बांधने के बारे में. अगर मैं एक दूसरे को अगर मुझे बढ़ाना है या बांधना है, सबसे पहले चीज़ शुरुआत होता है मुझसे. फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स स्टार्ट्स विथ आई. इफ आई हैव टू बिल्ड द अदर पर्सन, it starts from me, it starts from my life, it starts from my character,
It starts from my words that I speak. It starts how I behave. It starts how I talk to one another. एक दूसरे से मैं कैसे बात करता हूँ, कैसे मैं, मेरा व्यवहार एक दूसरे से कैसा है, मेरा बर्ताव कैसा है, मेरा कैरेक्टर कैसा है, ये सब चीज़ मुझसे शुरुआत होता है. एक वचन है मत्ती के सुसमाचार 15 में, ऐसा लिखा है 14 में, 15 का 14 में, उसके आखिरी भाग में, Matthew 15 verse 14, the last part it says, वहाँ पे ऐसा लिखा है, I'm just reading the last part. And if the blind leadeth the blind, both shall fall into the ditch. ये एक सोचने की बात है जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे लिखता है कि अगर एक अंधा जो है और एक अंधा को अगर रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा तो दोनों जो है गड्ढे में जाके गिर जाएंगे. तो उसी तरीके से मैं अगर एक मेरे भाई या बहन को मैं अगर उसको उत्साहित करना चाहता हूँ या उसे बढ़ाना चाहता हूँ प्रभु में, तो मेरा जो व्यवहार या चाल चलन जो है वो अंधकार में नहीं रहना है या मेरे अंदर कोई गलती नहीं रहना है ताकि मैं किसी को सिखा सकूं कि मैं क्या हूं. तो मेरे अंदर वो परमेश्वर की जो ज्योति है वो दिखाई दे. जैसे कि वही जो पहला थिस्सलुनीय की जो पुस्तक में 5 में ऐसा लिखा गया है, 1 Thessalonians chapter 5 verse 5, A are all the children of lights and the children of the day. यहाँ पे ऐसा लिखा है कि हम लोग जो है वो ज्योति के बच्चे हैं और जब हम ज्योति में रहते हैं तो हमारा जो चाल चलन है इट शुड कोरस्पॉन्ड टू दैट लाइट. मेरा जो ताल्लुकात जो है उस ज्योति के साथ बने रहना है और ज्योति के साथ जब बना रहता है मैं, दैट इज आई शुड बी इन द राइट कैरेक्टर. मेरा जो चाल चलन जो है एक सही तरीके से होना है. यही मैं मेरे अंदर सोच रहा था कि मेरी कमी के साथ क्या मैं मेरे भाई को मैं कुछ बोल सकता हूँ या उत्तेजना दे सकता हूँ क्या मेरे कमियों में, या मैं अगर मेरे अंदर कुछ चीज़ें हैं जिससे मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ और उसी में मेरा एक दूसरा भाई उसी में संघर्ष कर रहा है, क्या उसके साथ क्या मैं उसको उत्साहित कर सकता हूँ? नहीं. जब मैं विजय पाता हूँ, व्हेन आई ओवरकम द सिन इन मी, द रॉन्ग थिंग्स इन मी, मेरे अंदर जो गलतियाँ, मेरे अंदर जो पाप के ऊपर जब मैं उसके ऊपर जब प्रभुता करता हूँ प्रभु के सहायता के द्वारा, देन द वर्ड पहला थिस्सलुनीय 5:11 में कहता है कि मैं तब जा कर के आई विल बी एबल टू एडिफाई वन अनदर, तब जा कर के मैं दूसरों को प्रोत्साहन दे सकता हूँ, सहायता कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ. तो परमेश्वर सहायता करे, क्योंकि इन दिनों में मैं यही चीज़ को सीख रहा हूँ. आई एम लर्निंग दिस थिंग्स इन दिस डेज टू ओवरकम सर्टन कैरेक्टर एंड थिंग्स इन माई लाइफ, मेरे अंदर कि उसको सुधारूँ, ट्राइंग टू करेक्ट माई सेल्फ in some areas where I could still overcome and learn more better from the Lord. So परमेश्वर हमारी सहायता करे. Praise and thank the Lord. I thank God for the encouraging word. I just want to read from Revelation chapter 3 verse 17. प्रकाशित वाक्य 3 का 17. Because you say I am rich and have become wealthy and have need of nothing, and you do not know what you are wretched and miserable and poor and blind and naked. तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है. So the problem is I don't know whether I am blind. इधर समस्या ये है कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैं अंधा हूँ. Even the blind man, they know they are blind. एक अंधा व्यक्ति खुद जानता है कि वो एक अंधा है. Even if you are naked, I am surely know that I am naked. अगर मैं नंगा हूँ तो मैं जान जाऊँगा कि मैं नंगा हूँ. Only the children 3 years old, 3 years less, they don't know whether they are naked. सिर्फ जो एकदम छोटा शिशु है, जो 3 बरस से एकदम नीचे छोटा शिशु है, वो ही नहीं जानते कि वो नंगा है. So that is what totally I am unaware. I am like a child. I don't know my condition. So totally I am backslidden.
इसलिए मैं एक छोटा शिशु के समान हूँ, मुझे नहीं जानता मेरा सही में मेरा अवस्था क्या है और मैं पूरा पीछे हटा हुआ अवस्था में हूँ। Most of the time we are thinking that we don't want opinion from man. हम बहुत बार सोचते हैं कि हमें कोई मनुष्य का राय नहीं चाहिए, But one of the very big sin Jesus condemned the Pharisees like their hypocrisy. लेकिन यीशु मसीह ने जो फरीसी लोगों को बहुत डांटा, ऐसा एक पाप है जो है कपट का पाप। Even we read in John chapter 9 also, if you are blind, there is no sin. योना 9 अध्याय में हम ये भी पढ़ते हैं कि अगर तुम अंधे होते तो कोई कुछ पाप नहीं होता। Because we are seeking honor from men and we are seeking something, we have to get recognition from the people. हम लोगों का सम्मान चाहते हैं, लोगों से आदर चाहते हैं, इसलिए So that is what God spoke to me, that I don't want to get any honor from people. I don't want to seek recognition from the people. इसलिए परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि मुझे लोगों का आदर नहीं चाहिए, नहीं तो लोग मुझे पहचाने, नहीं तो मेरे बारे में अच्छा सोचे, ऐसा मुझे नहीं सोचना है। Then I will easily, I can easily identify that I am naked, I am blind, I am miserable, I am wretched. I can identify the real condition of my life. अगर मेरा मन का स्थिति ऐसा है कि मुझे दूसरों से मान सम्मान नहीं चाहिए, तो मैं आसानी से मैं पहचान पाऊंगा कि मैं नंगा हूँ, अंधा हूँ या बहरा हूँ, ये सब मैं आसानी से पहचान पाऊंगा। So this is what recently I was checking with my spiritual condition. The Lord showed me one things clearly. और इसलिए मैं पिछले दिनों में मेरा आत्मिक अवस्था में जांच रहा था, तो परमेश्वर ने ये सब बात मेरे बारे में साफ करके दिखाया। So the Moses and Aaron went to the Pharaoh, said that we want to go for 3 days and we want to sacrifice and we want to worship, we want to celebrate. मूसा और हारून फरोन के सामने आके कहा कि हमें 3 दिन का यात्रा में भेजो, ताकि हम हमारा परमेश्वर को सामने आराधना कर सके, उसके सामने बलिदान चढ़ा सके। But Pharaoh said they are lazy, they are thinking that there is no work. Give lot of work, then they will not think that I want to worship God. फरोह ने उसे कहा कि ये लोग तो बहुत ही आलसी लोग हैं, इन्हें लगता है कि कोई काम नहीं है, इसलिए इनके मन में ऐसा विचार आ रहे हैं, उनका काम बढ़ा दो और भी ज़्यादा काम दे दो उनको। So that is what in my life I am getting lot of work in my office. और वैसे ही मेरा जीवन में भी मेरा काम के जगह पे बहुत ज़्यादा काम मुझे मिल रहा है। Even my manager know that if he work more than 15 hours or 16 hours, then only he can complete. Even my manager know, but still he is giving that work. मैनेजर को मालूम है कि ये मेरे से अगर 15 घंटा 16 घंटा काम करेगा तो ही ये काम पूरा होगा, फिर भी वो और काम देते जाता है। So that is what it is. Everything Satan, everything controlled, the corporate culture and everything controlled by Satan only. और वैसे ही हमारा जो काम का जो भी जो नियम है, जो कुछ करता है इस दुनिया में, संसार का सब बातें जो शैतान ने ऐसा उसका नियंत्रण लिया है। Give lot of work, give work from home, and he don't have a time limit. He can do, even he can work in the bathroom also. उसको काम दो, घर से काम करने का सुविधा दो, पूरा समय काम करते जाए, शायद वो बाथरूम में बैठे बैठे भी काम कर सकता है। So that they don't have time to worship God, they don't have personal fellowship with God. They don't in real condition. ताकि उन्हें परमेश्वर के साथ एकांत में उसका आराधना करने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए कुछ समय नहीं मिलेगा, पूरा काम के प्रति उनका समर्पण होगा। So I totally repent, I accept my fault, I understand that I am naked, I am wretched, I am miserable, I am blind, I confess my sin and I repent from God. और इसलिए मैं परमेश्वर के सामने मेरा पाप को मान लिया, मैंने कबूल किया कि मैं नंगा हूँ, अंधा हूँ, और मुझे देखने वो सब पाप मैंने परमेश्वर के सामने कबूल किया। Amen.